इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। बुक मूवमेंट, लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। टोटो, टोटो यहाँ पे एक मंकी यानी कि एक बंदर का नाम है। टोटो के साहसिक, टोटो का साहस। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या तुमने कभी एक पालतू छोटे मंकी जो बंदर है उस क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बंदर है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो क्या है? यहां पे एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्chievous और mischievous और docile। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अपन एक पता करेंगे कि कैसे कैसे उस टोटो ने शरारत की और क्या क्या उसने शरारत के वक्त क्या क्या चीजों का नुकसान किया। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने, लेखक या वर्णनकर्ता के दादाजी ने टोटो नाम के बंदर को खरीदा 5 रुपए में, वो भी एक तांगे वाले से। किससे? तांगे वाले से खरीदा। और उसको दादाजी ने अपने निजी चिड़ियाघर जो था उसमें उसको रखा। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth, which were a fairly wide, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years, and his fingers were quick and picked, and his tail wide, adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also serve as the third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Grandmother always viewed when grandfather brought home some new birds or animals, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely. Also we thought to a bag fashioned into the wall. देखिए टोटो की यहाँ पे विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि जो मंकी जो बंदर था उसमें क्या क्या विशेषता है। उसकी चमकती आंखें थी, शरारती आंखें थी, आईब्रो चमकते हुए दांत थे, और उसके एक पूंछ थी जो कि तीसरे हाथ का कार्य करती थी। उसकी उंगलियां जो थी छोटी छोटी उंगलियां, सूखी उंगलियां थी। दादी, लेखक की या वर्णनकर्ता की जो दादी थी वो हमेशा नाराज हुआ करती थी पशु पक्षियों से, जानवरों से, अपने दादाजी मतलब लेखक के दादाजी, वर्णनकर्ता के दादाजी। तो इसलिए दादाजी ने उस बंदर को फिर अपने एक बेडरूम में रखा। वहां से एक अलमारी जो थी, रास्ता थी उनके बेडरूम में खुलता था।
A few hours later, when grandfather and I came back to reach Toto, we found that a box which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as a net brick and plaster. The peg in the wall had been fresh from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in sand. I wondered that grandmother would say, but grandfather did not worry, he seemed pleased with Toto's performance. उस टोटो नाम के बंदर ने जिस बेडरूम में उस बंदर को रखा, तो उसने क्या किया, जितने भी चीजें थी, कैलेंडर थे, पेपर थे, दीवार थी, सब खराब कर दी, जो फाड़ने लायक चाहिए थी उसको फाड़। दादी को बहुत गुस्सा आता था उस पर जब ऐसी शरारतें बंदर करता था, लेकिन उसके दादाजी ऐसे कार्य से बड़े ही प्रसन्न होते थे, बड़े ही प्रसन्न होते थे उसके ऐसे कार्य से, बंदर के ऐसे कार्य से। तो he is clever and said grandfather, given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big case in the servant quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a wife, my pet dog. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension, his Saharanpur decided to take him along. देखिए, जब उस बंदर ने ऐसी शरारतें की, तो दादाजी ने उस बंदर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, अपने नौकरों के जो कमरा वगैरह था वहां पे शिफ्ट कर दिया, उसको वहां पर उसको स्थानांतरित कर दिया, भेज दिया एक बड़े पिंजरे में। और वहां पर वो जानवर भी थे, उसके पालतू जानवर दादाजी के, इसमें दिया हुआ है कि 2 खरगोश थे, एक कछुआ था, एक गिलहरी थी और एक बकरी थी, उनके साथ इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है टोटो नाम के बंदर को। लेकिन बंदर जो था बड़ा शरारती बंदर था, वो पालतू जितने भी जानवर थे उनको वो परेशान करता था, उन्हें सोने नहीं देता था। तो फिर उसके दादाजी ने, वर्णनकर्ता के दादाजी ने निश्चय किया, इसको मैं देहरादून छोड़ आऊंगा। क्यों? उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो साथ में उसको भी छोड़ने के लिए वो निश्चय कर लिया। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about his afterward. A big black canvas kit bag was provided for Toto, with some straw at the bottom. Became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to fight his way through. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a pipe king. देखिए, लेखक के या वर्णनकर्ता के दादाजी थे, एक बड़े बैग में अपना सामान रख लेते हैं और सहारनपुर जाने का निश्चय कर लेते हैं। किसी प्रकार से वो बंदर जो था वो भी उसमें छुपकर उस बैग में बैठ जाता। बैग इतना मजबूत था कि उससे वो और दादाजी उसको बंद कर बैग। अब बंदर उससे निकल नहीं पाया, ना तो अपने दांत से उसको कतर पाया या उसको फाड़ सका, क्योंकि बैग बहुत मजबूत था। अब उसको दादाजी उस बैग को ले जाते हैं
और उसमें से सिर्फ उसका जो आगे वाला पोर्शन है वो निकलता है, तभी टिकट कलेक्टर देखता है उस बैग को जिसमें वो बंदर था, टोटोनाम का बंदर। तो आगे क्या होता है, The poor man was taken aback part with the great presence of mind and much to grandfather's annoyance. He said, Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, What must I pay for this, since you charge for all animals? The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with the forefingers, gave grandfather a plate and the trim part, looked and said, No charge, it is not at all. क्या होता है, टिकट कलेक्टर देख लेता है और समझता है कि इसमें कुत्ता है, तो कुत्ते के लिए उस बैग में जो कुत्ता समझता है और वो उससे दादाजी से उसका फेयर एंड किराया मांगता है। टिकट कलेक्टर जो रेलवे में टीसी होता है, दादाजी कहते हैं कि मेरे पास कछुआ है, तो वो उसको किराया देने के लिए कहते हैं। जब वो देखते हैं बैग में तो उसमें वो टिकट कलेक्टर देखता है तो उसमें बंदर था, तो वो किराया लेने से मना कर देता है। कौन? टिकट कलेक्टर की किराया मुझे नहीं चाहिए। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for the companion the family donkey. Now, on Toto's first night in the stable, grandfather paid him the visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her hand as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she sharked back, dragging to Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evening was the last bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the water, first one foot, then the other, as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. देखिए, फिर उसको दादाजी घर पे ले आते हैं, उसको दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है उस टोटो नाम के बंदर। अब वो छोड़ने नहीं गए, उसको घर पे ले आए। उसको फिर एक घुड़साल था, घुड़सवार बोलते हैं, इसमें घोड़े वगैरह रहते हैं, वहां पर उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां पर एक गधा था नाना नाम का, तो उसके साथ उसको रखा जाता है। लेकिन दोनों जो बंदर तो शरारती था ही, तो दोनों में बनी नहीं, वे दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं की, ना दोस्त बन सकते थे। फिर क्या हुआ, ठंड का मौसम था, तो उसे दादी माँ के द्वारा उसे जो टब होता है उसमें उसको गर्म पानी से नहलाया गया या नहलाया जाता था। किसको? टोटो नाम के बंदर। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet. साबुन भी लगाते थे और उसको अच्छी तरह नहलाया जाता था और उसको रगड़ा भी जाता था, स्वयं रगड़ता था। वो तो ऐसा कर लेते तो सारी चीजें वो क्रियाकलाप कर सकता था, साबुन वगैरह नहा सकता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था तो he would get out and run as quickly as they could to the kitchen fire in order to dry himself. ठंडा पानी होने पर वो वहां से निकल आता था, जो रसोई में जो आग जलती थी वहां पे आके बैठ जाता था गर्मी लेने के लिए या ठंड दूर करने के लिए। If anyone laughed at him during his performance, कोई भी इसकी इस क्रियाकलाप पर, इस कार्य पर हंसता था,
Toto's feeling would be the hurt and he would refuse to go with his father. तो टोटो नाम के बंदर को शर्म महसूस होती थी, तो वो दोबारा नहाने के लिए नहीं आता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन वह गर्म पानी में नहाने में सफल हो जाता है, वो पूरा उबल जाता है। Last Kism kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for the bath, he got it with his hands sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and handed him half-boiled out of the kettle. देखिए, जो चायदानी केटली वगैरह थी उसको भी उठाने का प्रयास करता है, उसमें गर्म पानी था उससे नहाने का प्रयास करता है, तो बहुत सारी शरारतें वो करता है। कौन? टोटो नाम का बंदर किचन में जाके रसोई में जाकर। If there is a part of the brain escapely devoted to mischief, that part was the largest developed in Toto. He was always tearing things to pieces whenever one of my aunt came near him. He made every effort to hold of her dress and tear a hole in it. उससे सभी तंग आ जाते हैं, आंटी भी परेशान हो जाती है, चाची थी, क्योंकि वो घर में रसोई का भी वो जो रसोई में चीजें थी उसको भी वो नुकसान पहुंचा देता है। One day at the lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice, my grandmother's theme, and Toto threw the plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of the plough and made the exit through a window. He found him in the branches of the jackfruit trees. The dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined of the finishing every game, and then he ordered to spied grandmother who had scrambled at him. He threw the dish down from the tree and the chatters with delight with it broken into the 100 pieces. देखिए, चावल खा रहा होता है प्लेट में, पुलाव, तो पुलाव खा रहा होता है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर जो आती दादी आती है वो उसका गुस्सा करती हैं, तो वो प्लेट को फेंक के दे देता है। अब प्लेट को फेंक के दे देता है तो क्या होता है कि दादी पे वो प्लेट पड़ जाती है, फिर उसके बाद वो प्लेट को लेकर वो पेड़ पे चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है? जो जैक फ्रूट था, कटहल का पेड़ था, उस पर चढ़ जाता है, वहां पर वो खाता है। नीचे वो कोई भी उससे लेने की कोशिश करता है तो उस पर भी वो फेंकता है, उस पर भी वो प्रहार करता है। ये सारी चीजें वो बंदर करता है। Obviously, Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. देखिए, उसकी शरारत से उस दादाजी, दादी जी, चाची यानी सभी घर के सदस्य जितने भी थे वो बड़े परेशान हो जाते। अंत में निश्चय किया जाता है कि टोटो जो नाम का बंदर है वो पालतू लायक नहीं है, पालने लायक नहीं है, इसलिए उस तांगे वाले को ढूंढा जाता है, उसे वापस उसको फिर बेच दिया जाता है 3 रुपए में, यानी कि 2 रुपए घाटे के हिसाब से उसको बेच देते हैं। यानी कि लिया था 5 रुपए में और 3 रुपए में घाटे के सौदे के साथ बेच दिया जाता है। क्यों? वो लाए तो थे इसको पालने के लिए, लेकिन वो पालने लायक नहीं था, वो पालने लायक नहीं था। उसने क्या किया? घर की सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से उसे वापस उसी मालिक के पास, जहां से खरीदा था, उसी मालिक के पास उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़ कर आना पड़ता है उस तांगे वाले के पास।
बच्चों ये पाठ था वो मैंने आपको बता दिया। कहने का तात्पर्य है कि पालतू जानवर अगर पालने लायक होता है तभी आप उसको पालिए। अगर शरारत कर रहा है, चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसे मत पालिए। जहाँ से लेके आए हैं वहीं पे छोड़ के आइए। और बंदर नाम का जो प्राणी, जो जीव है, वो अक्सर शरारती होता है। वो बमुश्किल किसी जगह ढंग से रह पाता है। वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या खराब चीज़ें करता रहता है। इसलिए ये पाठ में यही बताया गया है कि हम जो भी चीज़ें, कोई भी जानवर को अगर पालते हैं, अगर वो घर का हित ना करते हुए नुकसान कर रहा है, किसी भी प्राणी के लिए नुकसान कर रहा है या चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे ना पालें, उसे अपने घर में ना रखें और जहाँ से लेके आए उसे वहीं पर छोड़ के आए। तो इस पाठ में क्या है कि उस बंदर से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वर्णनकर्ता के घर के जितने भी लोग थे, दादाजी तो हालांकि ये सारी चीज़ें सहन करते सकते थे, लेकिन और भी घर के लोग थे, दादी थी, चाची थी, और भी, तो वो सभी इससे परेशान थे। तो अंत में दादाजी निश्चय करते हैं कि इसको उसी जगह छोड़ के आना पड़े जहाँ से इसको लेके आए। तो ये पाठ था वो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में इसके अगले पाठ के बारे में चर्चा होगी और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, इसके जो नोट्स हैं, मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा, फिर कॉपी बनाइएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना है।